So we are going to do this chapter called coins in ancient and medieval India. The word coin is derived from the Latin word cuneus, and it is believed that the first recorded use of coins was in China and Greece. The first recorded use of coins was in China as well as Greece around 700 BC, and in India in the 6th century BC, that is 600 BCE. The study of coins and medallions is known as numismatics, and punch-marked coins. The earliest coins were casted coins and were die struck only on one side. 1 to 5 marks or symbols were incised on single side and were termed as punch-marked coins. तो कह सकते हैं कि earliest coins were the punch-marked coins, and Panini's Astyadhyayi cites that to make punch-marked coins, metallic pieces were stamped with symbols. Each unit was called a ratti, weighing 0.11 gram. The first trace of this coin was available between 6th and 2nd century BCE. Following two classifications are available. Punch-marked coins issued by various Mahajanpads. The first Indian punch-marked coins called Puranas, Karshapanas or Pana were minted in the 6th century BC. तो देखो punch-marked coins issued by various Mahajanpads. तो महाजनपद पीरियड के दौरान जो punch-marked coins आए थे, they were called as Puranas, Karshapanas or Pana were minted in the 6th century BCE by the various Janpads and Mahajanpads of the Indo-Gangetic plain. So you just have to remember the names like Puranas, Karshapanas or Pana. These coins had irregular shapes, standard weight and were made of silver. इस वक्त सिल्वर के coins punch-marked coins बनते थे with different markings like Saurashtra had a humped bull, Dakshin Panchala had a swastik, and Magad had generally 5 symbols. Magadhan punch-marked coins became the most circulated coins in South Asia. तो ये एक पॉइंट ये याद कर सकते हैं कि मगध के जो कॉइनेज था उसमें यूजुअली 5 सिंबल देखने को मिलते थे पंच-मार्क्ड कॉइन्स में, एंड मगधन पंच-मार्क्ड कॉइन्स बिकेम द मोस्ट सर्कुलेटेड कॉइन्स in the entire South Asia. They were mentioned in the Manusmriti and Buddhist Jatak stories and lasted 3 centuries longer in the south than in the north. You can see that there are 5 distinct figures, 1, 2, 3, 4, 5. And punch-marked coins during the Mauryan period की अगर बात करें 322 to 185 BCE, Chanakya, the prime minister to the first Mauryan emperor Chandragupta Maurya, mentioned the minting of punch-marked coins such as Rupya Rupa, Suvarna Rupa, and Tamra Rupa, and Sisa Rupa, and in his अर्थशास्त्र. तो अर्थशास्त्र में बेसिकली इन प्रकार के कॉइनेज या कॉइन्स पंचमार्क कॉइन्स का जिक्र किया है किसने? चाणक्य ने अपनी किताब में अर्थशास्त्र में. ठीक है, तो अब देखो इसमें जो सिल्वर के थे दे वर कॉल्ड एज रूपया रूपा, सुवर्ण रूपा वर द गोल्ड पंचमार्क कॉइन्स, ताम्र रूपा वर मेड ऑफ द कॉपर, एंड सिसा रूपा वर मेड ऑफ lead. In his Arthashastra treatise, out of the various symbols used, sun and 6-armed wheel were most consistent. Sun and 6-armed wheel, they were the most consistent figures to be found in the punchmark coins during the Mahajanpad period. The coin contained an average 50 to 54 grains of silver and 32 rattis in weight and were termed as Karshapanas. तो अभी भी मौर्यन काल में भी पंचमार्क कॉइन्स को करशपनास बोलते थे. अब इंडो ग्रीक की बात करें, थोड़ा सा मौर्य के बाद आए थे ये लोग. तो the reign of the Indo-Greeks was from 180 BCE to around 10 CE. The Indo-Greeks introduced the fashion of showing the buster head of the ruler on the coins. The legends on their Indian coins were mentioned in 2 languages, in Greek on one side and Kharoshti on the other side of the coin. तो इनके सिक्कों में एक distinct feature ये देखने को मिला कि the legends were shown on the coins, and the legends on their Indian coins were mentioned in 2 languages, in Greek on one side and Kharoshti on the other side of the coin. The Greek gods and goddesses commonly shown on the Indo-Greek coins were Zeus, Hercules, Apollo, and Pallas and Athene. The initial series used images of the Greek deities, but later coins had images of Indian deities as well. तो the initial series जो Indo-Greek coins आए थे उसमें तो सिर्फ Greek deities का फिगर था, बट बाद में अपने Indo-Greek coins में वो Indian deities को भी छपवाने लगे. These coins are significant because they carry detailed information about the issuing monarch, the year of the issue, and sometimes an image of the reigning king. Coins were mainly made of silver, copper, nickel, and lead. The coins of the Greek kings in India were bilingual, that is written in Greek on front side and Pali language, that is Kharoshti script on the back. तो ये हम इसके बारे में तो बता ही चुके हैं. दूसरी चीज़, ये 4 मेटल्स के बनते थे, जैसा कि हमने ऊपर देखा था कि मौर्य काल में जो अर्थशास्त्र में 4 प्रकार के सिक्कों
बेसिकली जो मटेरियल था दैट इज़ सिल्वर, गोल्ड, कॉपर एंड लेड। तो अभी यहाँ पे क्या है कि सिल्वर, कॉपर, निकल एंड लेड, देखो ये एक माइन्यूट डिफरेंस है। जो अर्थशास्त्र में कॉइनेज में मटेरियल यूज्ड फॉर मिंटिंग द कॉइन्स था उसमें सिल्वर था, गोल्ड था, कॉपर था, लेड था, और जिसमें लेड का नाम था सिसारूपा करके था, सिसारूपा, और कलेक्टिवली दे वर ऑल कॉल्ड एज कर्शपनास। जबकि इंडो ग्रीक कॉइन्स में सिल्वर, इसमें गोल्ड नहीं है, गोल्ड की जगह निकल आ जाता है, ठीक है। द कॉइन्स ऑफ द ग्रीक किंग्स इन इंडिया वर बाइलिंगुअल, दैट इज रिटन इन ग्रीक ऑन द फ्रंट साइड इन पाली लैंग्वेज विच बिलोंग्स टू द खरोष्टी स्क्रिप्ट ऑन द अदर साइड ऑफ द कॉइन। तो ये देख सकते हो कुषाण पीरियड कॉइन जो कि इंडो ग्रीक्स के बाद ही आए थे। Later Indo-Greek Kushan kings introduced the Greek custom of engraving portrait heads on the coins. Kushan coins were adorned with helmeted bust of the king on one side and the king's favorite deity on the reverse. तो इसमें helmeted bust देखने को मिलने लगा of the king। तो helmet पहना हुआ king का धड़ दिखाया जाता था। कहाँ पे है ये? Kushan coins were adorned with helmeted bust of the king on one side and the king's favorite deity on the reverse. The coins issued by the Kanishk employed only Greek characters. अब ये favorite स्टेटमेंट के रूप में लिखा जा सकता है और ट्रू या फॉल्स पूछ सकता है। द कॉइन्स इशूड बाय कनिष्क एम्प्लॉयड ओनली ग्रीक कैरेक्टर्स की बात हो रही है, डेटीज़ की नहीं, सिर्फ कैरेक्टर्स की। द एक्सटेंसिव कॉइनेज ऑफ द कुशान एम्पायर ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड अ लार्ज नंबर ऑफ ट्राइब्स, डायनेस्टीज एंड किंगडम्स विच बिगैन इशूइंग देयर ओन कॉइन्स। अब इसके बाद सातवाहन्स की बात करें 232 BC एंड लास्टेड अप टू 227 AD। द सातवाहन किंग मोस्टली यूज्ड lead as a material for their coins. Silver coins were rare. Next to lead they used an alloy of silver and copper called portin. तो ये सिल्वर और कॉपर को मिला के एक मटेरियल बना दिए थे पोर्टिन, उसका इस्तेमाल सातवाहन्स यूनिकली करते थे। Many copper coins were also available, although the coins were devoid of any beauty or artistic merit. They constituted a valuable source material for the dynastic history of the Satvahans. On one side, most of the Satvahan coins had the figure of an elephant, horse, lion or chaitya. The other side showed the Ujjain symbol, a cross with four circles at the end of the two crossing lines. The dialect used was Prakrit. तो देखो इसमें जैसे ऊपर इंडो ग्रीक कॉइन्स में पाली विच बिलोंग्स टू द खरोष्टी स्क्रिप्ट एंड ग्रीक ऑन द अदर साइड ऑफ द कॉइन, ये दोनों देखने को मिलता था, जबकि सातवाहन्स में प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया था। और एक साइड ऑफ द कॉइन में उज्जैन सिंबल था। उज्जैन सिंबल आप देख लेना गूगल करके, विच इज़ लाइक अ क्रॉस विथ फोर सर्कल्स एट द एंड ऑफ द टू क्रॉसिंग लाइन्स। अच्छा ठीक है, तो उसको उज्जैन सिंबल बोलते हैं, राइट। अब ये सातवाहन लेड कॉइन विद उज्जैन सिंबल। फिर काउरी शेल के क्या महत्व हैं? अपार्ट फ्रॉम द कॉइन्स, अनदर मेजर मीडियम ऑफ एक्सचेंज इन द अर्ली Indian market was cowrie shell. Cowrie shells were used in large numbers by the ordinary masses for small-scale economic transactions. It is said that the cowrie shells carried definite value in the market just as the coins. Now, coins of the Western satraps or the Indo-Scythians. अब Western satraps को Indo-Scythians भी बोलते हैं, और इनका क्या है कि the Western satraps ये 35 से 405 CE रूल किए थे, had their dominion in the western India, originally comprising of the Malwa, Gujarat and Kathiawar area. They were all of the Saka origin. The coins of the western satraps, या Indo-Scythians, are of great importance. They bear dates of the Saka era, which started from 78 AD. The coins of the western satraps have head of the king on one side. On the other side, they carry device of the Buddhist chaitya or stupa. तो Buddhist chaitya या stupa on one side, whereas king का सर on another side of the coin। ये तुम्हें कहाँ देखने को मिला था? इंडो-सीथियंस में, एविडेंटली borrowed from सातवाहन्स, और यहाँ भी प्राकृत लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया था। तो इंडो-सीथियंस कह लो या फिर वेस्टर्न सैट्रैप्स कह लो, मालवा, गुजरात, काथियावाड़ वाले, इन्होंने हूबहू सातवाहन्स का कॉपी कर लिया था। हालांकि ऐसा कोई लेड का इस्तेमाल तो नहीं किया था ज़्यादा, बट और ना ही वो उज्जैन सिंबल का इस्तेमाल किया था, बट बुद्धिस्ट चैत्य को दिखाया गया था इसमें। फिर गुप्ता काल में कॉइनेज का बताएं तो द गुप्त कॉइन्स वर मेनली मेड ऑफ गोल्ड, ऑल्दो दे इशूड सिल्वर एंड कॉपर कॉइन्स टू। अब यहाँ पे थोड़ी सी अमीरियत बढ़ गई थी लोगों की, तो गोल्ड कॉइन्स ज़्यादा आ गए थे। सिल्वर कॉइन्स वर इशूड ओनली आफ्टर चंद्रगुप्त टू ओवरथ्रो द वेस्टर्न सैट्रैप्स। देयर वर मेनी टाइप्स। अच्छा, ये भी स्टेटमेंट के रूप में पूछ सकता है, इसको हम अलग कलर से अगर मार्क कर दें तो एक तो यहाँ हमने एक स्टेटमेंट हाईलाइट किया था, दैट वाज द इनिशियल सीरीज ऑफ यूज्ड images of the Greek deities, but later coins had images of Indian deities as well. So that is a correct statement applicable for the Indo-Greek coins. एक और यहाँ हमने पढ़ा था कहीं पे कि Kushan coins were adorned with helmeted bust of the king on one side and the king's favorite deity on the reverse. The coins issued by the Kanishk
एम्प्लॉयड ओनली ग्रीक कैरेक्टर्स। हाँ, ये स्टेटमेंट था। और यहाँ पे क्या पढ़ा हमने कि जब गुप्त काल में वेस्टर्न सैट्रैप्स को हरा दिया गया था, दैट इज़ इंडोसीथियंस को, उसके बाद सिल्वर कॉइन्स का प्रोमिनेंस थोड़ा सा बढ़ा था, अदरवाइज गोल्ड कॉइन्स ज़्यादा प्रोमिनेंट थे गुप्त काल में। Now there were many types and varieties of Gupta gold coins. On one side of these coins, the king can be found standing and making oblations before an altar, playing the veena, performing Ashwamedh, riding horse or an elephant, slaying a lion or a tiger or a rhinoceros with a sword or bow, or sitting on a couch. On the other side was goddess Lakshmi seated on a throne or a lotus seal, or the figure of queen herself. The inscription on the coins were all in Sanskrit. अब देखो ये यहाँ पे थोड़ा सा ट्रांजिशन हो गया था। अभी तक हमने देखा था कि सातवाहन्स और उनके ऊपर ये कौन थे, वेस्टर्न सैट्रैप्स। यहाँ पे तुम्हें प्रकृत लैंग्वेज देखने को मिल रहा था, ठीक है। और देखो ये प्रकृत, सातवाहन्स में उज्जैन सिंबल ऑन वन साइड एंड प्रकृत का इस्तेमाल लैंग्वेज के रूप में। और यहाँ पे लेड एज वेल एज एक एलॉय बनाया था इन्होंने पोर्टिन नाम का, मेड ऑफ सिल्वर एंड कॉपर, तो दैट वाज सातवाहन। अब यहाँ पे गुप्त काल में संस्कृत आ गया था सिक्कों पे फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द कॉइन्स। सो द इंस्क्रिप्शंस ऑन द कॉइन्स वर ऑल इन संस्कृत for the first time in the history of the coins. Now, Gupta rulers issued coins depicting the emperors not only in martial activities like hunting lions, posing with weapons, but also in leisurely activities like playing a veena, with reverse side of the coin having images of goddess Lakshmi, Durga, Ganga, Garud, Kartikeya. तो लक्ष्मी तो हम लोग पढ़े थे, दुर्गा भी देख लो, गरुड़ एंड कार्तिकेय, इनके चित्र भी एक साइड ऑफ द कॉइन पे थे गुप्त काल में. The end of the Gupta rule in the 6th century due to Huna invasion ushered in a period of uncertainty when again a number of local kingdoms rose in different regions, issuing region-specific coins which were poor in both metallic content and artistic design. Thus, during a long period stretching till the 13th century, a mix of designs borrowed not only from the Kushan Gupta pattern but also from foreign designs were employed by the later dynasties in western, eastern, northern and central India. South India developed a different coin paradigm, moving towards a gold standard which was inspired from the Roman gold coins which arrived in the region during the first 3 centuries of the first millennium. अब इसके बाद वर्धन्स आ गए थे, ये वही पुष्यभूतिस ऑफ थानेसर, हर्षवर्धन वगैरह के बारे में बात हो रही है. तो ये लेट 6th सेंचुरी के आसपास देखो, द वर्धन्स ऑफ द थानेश्वर एंड कन्नौज वर रिस्पॉन्सिबल फॉर टर्निंग आउट द हून इन्वेडर्स फ्रॉम इंडिया इन द लेट 6th सेंचुरी. तो इन्होंने हून इन्वेडर्स को भगा दिया था. द मोस्ट पावरफुल ऑफ देयर किंग वॉज हर्षवर्धन, whose empire comprised almost the whole of the northern India. The silver coins of the Vardhans had on one side head of the king and on the other side the figure of a peacock. तो इसमें देखो एक peacock on one side and head of the king on the other side of the silver coin. ये हर्षवर्धन्स के समय आया था. And the dates on the coins of Harshvardhan are reckoned in a new era which most probably began 606 AD, the year of his coronation. तो देखो यहाँ peacock आ गया और head of the king on another side of the coin. Then coins of Chalukyan kings की बात करें, जैसे कि पुलकेशिन 1 हम पढ़ते हैं, विद इट्स कैपिटल एट बादामी इन कर्नाटका. ऑन वन साइड ऑफ द कॉइन इमेज ऑफ अ टेम्पल और अ लायन एंड लेजेंड्स, द अदर साइड वाज लेफ्ट ब्लैंक. तो ये एक यूनिक फीचर हो जाता है कि कौन से किंग या डायनेस्टी के कॉइनेज सिस्टम में एक साइड ऑफ द कॉइन को ब्लैंक रखा जाता था. सो दैट वाज चालुक्यन पुलकेशिन 2, बादामी कर्नाटका वाले रीजन में. द कॉइन्स ऑफ द ईस्टर्न चालुक्यन डायनेस्टी, जो कि कर्नाटका से नहीं बिलोंग करते थे, थोड़ा सा ईस्ट में थे, had symbol of the boar at the center. तो boar माने सुअर, which each letter of the king's name inscribed by separate punch. The other side here also was left blank. तो यहाँ भी चाहो ईस्टर्न हो गया या बादामी के चालुक्याज हो गया, उनके एक साइड ऑफ द कॉइन हमेशा ब्लैंक रखा जाता था. कॉइन्स ऑफ द राजपूत डायनेस्टी पे आते हैं तो पहली बात तो ये मोस्टली ऑफ गोल्ड ज़्यादा था यहाँ पे, जस्ट लाइक गुप्ता, बट रेयरली सिल्वर था. There were 2 types of Rajput coinage. One type showed the name of the king in Sanskrit on one side and a goddess on the other side. ठीक है, name of the king in Sanskrit on one side and goddess on the other side, just like Gupta coins. And the coins of the Kalachuris, the Chandelas, the Bundelkhand, the Tomars of Ajmer and Delhi, and of the Rathors of Kannauj were of this type. The king of Gandhara or Sindh introduced another type of silver coins that had a seated bull on one side and a horseman on the other. तो ये छोड़ सकते हो तुम. बस इतना याद रखो कि राजपूत कॉइनेज में तुम्हारा नेम ऑफ द किंग इन संस्कृत ऑन वन साइड एंड द गॉडेस ऑन द अदर साइड, मोस्टली मेड ऑफ गोल्ड एंड रेयरली सिल्वर. तो ये हो गया. इसके बाद पांड्यन एंड चोला डायनेस्टी के कॉइन देख लेते हैं. द कॉइन्स इशूड बाय द पांड्यन डायनेस्टी वर स्क्वायर शेप्ड. ये हो गया.
with an image of elephant in the early period. Later, fish became a very important symbol in the coins. The gold and silver coins had inscriptions in Sanskrit and copper coins in Tamil. तो inscriptions तुम्हारे यहाँ संस्कृत और तमिल भाषा में देखने को मिलते थे, और यहाँ पे lion इनिशियल कॉइन्स में और फिश लेटर कॉइन्स में इंस्क्राइब्ड मिलते थे कॉइन्स में पांड्यन डायनेस्टी के समय. और सबसे यूनिक फीचर था कि यहाँ पे लायन नहीं, एलिफेंट इन द अर्ली पीरियड एंड लेटर फिश बिकेम अ वेरी इंपॉर्टेंट सिंबल इन द कॉइन्स ऑफ पांड्यंस. सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे पांड्यन कॉइनेज सिस्टम में था कि दे मेड कॉइन्स ऑफ ए स्क्वायर शेप्ड. Now, the coins of the Chola king Rajaraj I had the standing king on one side and seated goddess on the other side, not important, with inscription generally in Sanskrit. Rajendra first coins had the legend Shri Rajendra in Gangai Konda Chola inscribed with emblems of tiger and fish. तो देखो, एक टाइगर एंड फिश का कॉम्बिनेशन मिलेगा या फिर एलिफेंट एंड फिश का मिलेगा तो समझ लेना कि चोला की बात हो रही है, सॉरी पांड्यास की बात हो रही है, कहीं ना कहीं साउथ इंडिया का जिक्र आने वाला है. और तो इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हो ऐसा कि पांड्या में तुम्हारा एलिफेंट और फिश था, राइट, एंड इट वाज स्क्वायर शेप्ड, एंड संस्कृत एंड तमिल का इस्तेमाल होता था पांड्यन में, जबकि इनके केस में भी संस्कृत का तो इस्तेमाल किया जाता था चोलास के समय, बट एक साइड लायन था और एक साइड फिश था. ठीक है, द कॉइन्स ऑफ द पालवा डायनेस्टी हैड द फिगर ऑफ लायन. तो फाइनली लायन किस में तुम्हें देखने को मिला? इट वाज फाइनली इन पालवा. तो अब देखो, कंफ्यूज नहीं होना है, एलिफेंट एंड फिश, संस्कृत एंड स्क्वायर शेप्ड, तो दैट इज़ पांड्यन. फिर चोला में आते हैं. चोला में तुम्हारा टाइगर एंड फिश था और संस्कृत इंस्क्रिप्शंस थे, और फिर फाइनली पालवाज में तुम्हारा लायन आ जाता है. ठीक है, फिर टर्किश एंड दिल्ली सल्तनत कॉइन्स के बारे में बात करते हैं. The coins had inscriptions in the form of king's name, title and the date as per Hijri calendar. The coins did not bear any image of the issuing monarch. तो ये एक खास पॉइंट यहाँ पे देखने को मिलता है. As there was a prohibition of idolatry in Islam, for the first time the name of the mint was also inscribed in the coins. For the first time the name of the mint was also inscribed in the coins. एक ये important point हो जाता है, name of the mint was also inscribed in the coins. and दूसरी चीज़ कि यहाँ पे कोई king का थोबड़ा नहीं बनाते थे because idolatry was banned in Islam. और the Sultans of Delhi issued gold, silver coins, copper and bullion coins. Silver tanka and copper jeetal was introduced by Iltutmish. Alauddin Khilji changed the existing design by dropping the name of Khalif and replaced it by self-praising titles. Muhammad bin Tughlaq circulated bronze and copper coins. तो ये थोड़ा सा as token currency which was a flop. Bronze and copper coins as token currency which was a flop. ये तो सब लोग जानते हैं कि टोकन करेंसी सिस्टम मोहम्मद बिन तुगलक लेके आया था, which was a failed idea, बट ये कोई नहीं जानता कि वो टोकन करेंसी किस मटेरियल का बना हुआ था. तो इट वाज ब्रॉन्ज एज वेल एज कॉपर, तो ध्यान रखना. फिर शेर शाह सूरी आगे इंट्रोड्यूस 2 स्टैंडर्ड्स ऑफ वेट, 178 ग्रेन्स फॉर सिल्वर कॉइन्स एंड 330 ग्रेन्स फॉर कॉपर कॉइन्स. दीज वर लेटर नोन एज रुपी एंड दाम. ठीक है, तो इसमें वेट इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज ये शायद सबसे अभी तक फॉलो किया जा रहा है. तो 178 178 ग्रेन्स फॉर सिल्वर कॉइन्स एंड 330 ग्रेन्स ऑफ कॉपर कॉइन्स. तो सिल्वर वाले को रुपी बोलते थे और कॉपर वाले को दाम बोलते थे. दैट वाज ड्यूरिंग द शेर शाह सूरी. अब विजयनगर में देखो जो गोल्ड कॉइन्स का ज़्यादा प्रोमिनेंस था, जैसे कि देखो पगोडाज क्या एक बेसिकली हायर डिनोमिनेशन ऑफ कॉइन था, और गोल्ड फनम्स बोलते थे और सिल्वर ताराज बोलते थे. कॉपर कॉइन्स डे टू डे ट्रांजैक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता था. तो देखो विजयनगर किंगडम में पगोडा होता था सबसे बड़े डिनोमिनेशन में, फिर पगोडा सबसे बड़ा, फिर फनम्स और फिर तरफ्स. तो फनम गोल्ड का हो गया और तरफ सिल्वर का हो गया, और कॉपर डे टू डे स्मॉल ट्रांजैक्शंस. द अर्लियर विजयनगर कॉइनेज वर प्रोड्यूस्ड इन डिफरेंट मिंट्स एंड वर कॉल्ड बाय डिफरेंट नेम्स सच एज बरकुर, बडियानास एंड भटकल गडियानास. ठीक है, तो देखो आसान है. बरकुर ये क्या नाम है? बेसिकली ये सब क्या है जो विजयनगर के कॉइनेज सिस्टम का नाम है. बरकुर बडियाना, बरकुर घडियाना एंड भटकल घडियाना. भटकल घडियाना और बरकुर घडियाना, ये सब विजयनगर कॉइनेज सिस्टम का नाम है. द इंस्क्रिप्शंस वर इन कन्नड़ा और संस्कृत. इमेजेस फाउंड आर डबल हेडेड ईगल होल्डिंग एन एलिफेंट in each beak and a claw, a bull, an elephant and various Hindu deities. The gold Varahan coin issued by Krishna Dev Rai had a seated Vishnu on one side and a 3-line legend Shri Pratap Krishna Rai in Sanskrit on the other side. तो देखो केवल कृष्णदेव राय एक ऐसा वरहा नामक गोल्ड कॉइन लेके आए थे जिसमें विष्णु एक साइड दर्शाए गए थे. ठीक है, अब मुगल कॉइनेज हम अगले से देखते हैं.
तो अभी हमने ऊपर देखा था एक जगह कि पांड्यंस यूज टू इशू कॉइन्स विच वर स्क्वायर इन शेप, राइट। अब ये देखो अकबर जो है, बाय द वे हम ये पढ़ रहे हैं मुगल कॉइनेज। सो द स्टैंडर्ड गोल्ड कॉइन्स ऑफ मुगल्स वाज कॉल्ड एज द मोहर, और इसका वेट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अबुल फजल इन इज एनी अकबरी इंडिकेटेड दैट अ मोहर वाज इक्विवेलेंट टू 9 रुपीज़। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ये फैक्ट तुम्हें अबुल फजल की एनी अकबरी से देखने को मिलता है। देन हाफ एंड क्वार्टर मोहर्स आर ऑल्सो नोन, ठीक है। द सिल्वर रुपी विच वॉज एन अडॉप्शन फ्रॉम शेर शाह करेंसी, सिल्वर रुपी जो शेर शाह का चलाया हुआ था। कॉपर दाम याद आ रहा है, एंड सिल्वर रुपी बाय शेर शाह which was an adoption from Sher Shah's currency was the most famous of all the Mughal coins. The Mughal copper coin was adopted from Sher Shah's dam which weighed about 320-330 grains. अब इतना ये important नहीं है, ये बस याद रखो कि gold coin मोहर्स और equivalent to 9 rupees that we get to know from the Any Akbari by Abul Fazl. Okay, then Akbar issued both round as well as square coins. तो ये पांड्यास अभी हम पढ़े थे ऊपर एक जगह कि वो square coins निकाल देते, बट अगर अकबर की बात करें तो वो राउंड एज वेल एज स्क्वायर दोनों निकाल देते। इन 1579 ही इशूड गोल्ड कॉइन्स कॉल्ड इलाही कॉइन्स, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। टू प्रोपगेट इज न्यू रिलीजियस क्रीड कॉल्ड दिन इलाही, तो उसको प्रोपगेट करने के लिए वो दिन इलाही को प्रोपगेट करने के लिए इलाही कॉइन्स लेके आए थे 1579 में। द ईयर इज़ इंपॉर्टेंट। नाउ ऑन दिस कॉइन इट वॉज रिटन गॉड इज़ ग्रेट मे हिज ग्लोरी बी ग्लोरीफाइड। ये भी पूछ सकता है MCQ में कि गॉड इज़ ग्रेट ये किस मुगल एम्परर के कॉइन पे लिखा हुआ होता था, तो अकबर था। द वैल्यू ऑफ एन इलाही कॉइन वॉज इक्वल टू 10 रुपीज़, गोल्ड मोहर से 1 रुपये ज़्यादा हुआ करता था ये। दैन शहनशाह वॉज द लार्जेस्ट गोल्ड कॉइन, शहनशाह। तो देखो गोल्ड कॉइन में भी कई प्रकार के होते थे। अभी हमने ऊपर देखा था मोहर था 9 रुपये, फिर इलाही कॉइन्स हो गया 10 रुपये, और फिर शहनशाह सबसे ज़्यादा डिनोमिनेशन का होता होगा। दिस कॉइन्स बोर द नेम्स ऑफ द पर्शियन सोलार मंथ्स, ठीक है। देन आगे देखते हैं, तो जहांगीर की बात करें तो शोड द लेजेंड इन अ कपलेट इन द कॉइन्स। तो अब देखो ये मुगल रूलर हैं जहांगीर, जिसके कॉइन पे कपलेट्स लिखे रहते थे, लाइंस। इन सम ऑफ हिज कॉइन्स ही एडेड द नेम ऑफ हिज बिलवेड वाइफ नूरजहां। द मोस्ट फेमस ऑफ हिज कॉइन्स हैड इमेजेस ऑफ ज़ोडिएक साइंस। तो ऐसा कौन सा मुगल रूलर है जिसके सिक्कों पे कपलेट्स यानी दोहे टाइप के 2 लाइन लिखी रहती थी, और नूरजहां का भी चित्र दिखता था, और कभी कभी ज़ोडिएक साइंस के सिम्बल्स भी दिखते थे। तो it was Jahangir. Now the earliest reference of coins in the Indian context can be found in the Vedas. Nishka was the term used for coins made up of metals. अब ये वेद में लिखा हुआ था। शेर शाह सूरी, a 16th century ruler of Afghan lineage, introduced the rupee. It was a silver currency. At that moment 1 rupee was equal to 4 coins made of copper. ठीक है, 1 rupee, तो 1 silver rupee बेसिकली हम लोग कह रहे हैं ना, तो 1 silver rupee equal to 4 coins made of copper. The Indian currency is still called rupee. रुपया was made of silver which weighed about 11.34 grams during that period. ये weight नहीं important है। In ancient India, people used money trees to store their coins. A money tree was a flat piece of metal shaped like a tree with metal branches. At the end of each branch was a round disc with a hole in the center. Each of these discs was an ancient Indian coin. When one needed money, they simply broke off the coin from the money tree. ये देख लो कैसा आता है, काफ़ी इंटरेस्टिंग। ये विंटेज एंटिक्विटी के रूप में रख सकते हैं हम लोग, कैसा ये दिखता होगा। सो इन एंशिएंट इंडिया मनी ट्रीज वर नॉट फिजिकल ट्रीज बट रादर फ्लैट मेटल ऑब्जेक्ट्स रिजेंबलिंग ट्रीज with coins attached to their branches. These coins, often round discs with holes in the center, were part of the money system where individuals would break off a coin as needed. इसका इमेज नहीं दिख रहा है, अच्छा ये है चाइनीज़ मनी ट्रीज, राइट, ऐसा कुछ है, राइट। तो ये होता था एंशिएंट इंडिया में मनी ट्रीज, ठीक है। देन मूविंग ऑन, गुप्ता किंग्स स्टैम्प्ड देयर गिवन नेम्स ऑन द फ्रंट ऑफ देयर कॉइन एंड assumed names ending with आदित्य, तो ठीक है, और सन एट द बैक साइड ऑफ द कॉइन। छत्रपति शिवाजी issued gold हुंस एंड कॉपर शिवराइज विद हिज टाइटल इन द नागरी स्क्रिप्ट। तो गोल्ड हुंस किस डायनेस्टी का था, तो छत्रपति शिवाजी मराठास का था, और शिवराइज कॉपर करेंसी थी मराठास की, और गोल्ड हुंस थे। द वोडिया डायनेस्टी ऑफ मैसूर, अब उनके कोई रूलर था, उनका नाम इम्पोर्टेंट नहीं है, तो नरसिम्हा अवतार लेके आए थे वो अपने सिक्कों पे, विच इज़ एन अवतार ऑफ विष्णु। That is also not important. Hyder Ali, who overthrew the Vodya dynasty for some time, continued their coinage with figures of Shiva and Parvati on the earlier gold pagodas. अब देखो, Hyder Ali, being a Muslim, continued the figures of Shiva and Parvati on the earlier gold pagodas. And Tipu Sultan used 2 eras in his coins. ये भी एक MCQ बन सकता है। 2 eras in his coins कौन लेके आया था, तो टीपू सुल्तान, और हैदर अली में शिव और पार्वती थे।
The Coinage Act of 2011 replaced the Coinage Act of 1906. Term coin means coin made of any metal or any other material stamped by government authority empowered by government and includes commemorative coin, Government of India 1 rupee note. There are penalties described for forgery relating to minting etc. that is given in the Coinage Act of 2011. कुछ questions हैं, 2 statements हैं. Use of Sanskrit and Greek language on Indo-Greek coins. Indo-Greek में संस्कृत आ गया था क्या? नहीं, खरुष्टी था. तो ये तो मुझे गलत लग रहा है. कनिष्क मोस्टली इशूड लेड कॉइन्स, ये भी गलत लग रहा है मुझे. तो विच ऑफ द अबव इज़ ट्रू? अब देखो ऐसा कह सकते हैं कि मुझे लग रहा है कि नाइदर होना चाहिए. ग्रीक कॉइन्स में खरोष्टी था और ग्रीक था, संस्कृत कहाँ से आ गया? नाइदर होगा. डी. देखो आंसर क्या है, फर्स्ट का डी सही है. वेरी गुड. फिर उज्जैन सिंबल वाज अ कॉमन फीचर. अब ये मुझे लगता है सातवाहंस का था, सेकंड का सी. फिर थर्ड क्वेश्चन है, ये पीकॉक वाज यूजुअली प्रेजेंट इन गुप्ता कॉइन्स. आई पीकॉक था? नहीं, गुप्त में नहीं था. ये पीकॉक गुप्ताज में नहीं था. वेस्टर्न चालुक्यन किंग्स में था मेरे ख्याल से. यूज्ड इमेज ऑफ बोर एज अ सिंबल, कॉमन सिंबल इन कॉइन्स. अब ये मुझे भूल रहा है, थर्ड मैं छोड़ दूंगा, बट आई थिंक बोथ ऑफ देम आर करेक्ट. आई विल गो विथ 3 का डी है, नाइदर. आई थिंक दे हैव फ्लिप्ड इट. तो ज़रा देखना, चालुक्यन का देखना एक बार. राजपूत में क्या है कि संस्कृत का इस्तेमाल किया था, ठीक है, ऑन वन साइड एंड अ गॉडेस ऑन द अदर साइड. नेम ऑफ द किंग इन संस्कृत ऑन वन साइड एंड अ गॉडेस ऑन द अदर साइड, ठीक है. और ये मोस्टली गोल्ड, रेयरली सिल्वर. तो अच्छा, ये हो गया. द किंग्स ऑफ गांधारा और सिंध introduced the other type of silver coins that had a seated bull on one side and a horseman on the other. तो seated bull तो सिंध और गांधारा के सिल्वर कॉइन्स में के आसपास था. हम क्या देखना चाह रहे थे? चालुक्य का. अच्छा, वो कौन थे जो एक साइड ब्लैंक रखते थे? वो चालुक्यास ही तो थे, बादामी एज वेल एज ईस्टर्न चालुक्यास. इमेज ऑफ, और एक साइड पे तुम्हारा या तो मंदिर का आकृति होता था या फिर लायन का होता था, ठीक है, और दूसरा साइड ब्लैंक रहता था. सो दैट वाज चालुक्य. और यहाँ पे वर्धन्स की अगर बात करें तो वर्धन्स में तुम्हारा पीकॉक आ रहा है, ठीक है, और हेड ऑफ द किंग ऑन वन साइड एंड पीकॉक ऑन द अदर साइड. और ये मोस्टली सिल्वर कॉइन्स लेके आए थे हर्षवर्धन. और हर्ष बेसिकली वर्धन्स ही तो थे जो हून इन्वेडर्स को ख़त्म किए थे. और पीकॉक एक साइड था और खोपड़ी थी, राजा की खोपड़ी ऑन द अदर साइड. सो दैट इज़ वर्धन्स. फिर चालुक्य के बताएं तो इसमें इमेज ऑफ अ टेम्पल और लायन. तो यहाँ बोर तो कहीं नहीं लिखा है. देखो चालुक्य जो कि पुलकेशिन है, तो वो लायन ऑन वन साइड है. और हाँ, बस लायन रखो या मंदिर रखो, और राजा का होगा दूसरी तरफ ना. नहीं, दूसरी तरफ ब्लैंक रखा गया था. अच्छा, ईस्टर्न चालुक्यन डायनेस्टी हैड अ सिंबल ऑफ द बोर एट द सेंटर. तो ये सही तो है, बोर एट द सेंटर. ईस्टर्न चालुक्यन में बोर था, सुअर, ठीक है. तो चालुक्य में देखो लायन है और सुअर है और एक साइड ब्लैंक है, राइट. पीकॉक किस में था? ये तो वर्धन्स में था और मोस्टली सिल्वर कॉइन्स थे, जबकि तोमर्स और राजपूत्स मोस्टली गोल्ड कॉइन्स थे. हाँ, और गॉडेस और किंग का नाम था राजपूत्स में, और वर्धन्स हो गया. उसके ऊपर क्या था ये? अब देखो, ये गुप्ता में तो ब्राह्मी स्क्रिप्ट था, और लक्ष्मी, दुर्गा, गरुड़, कार्तिकेय एक तरफ थे, और मार्शल एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हुए राजा का दूसरी तरफ था, सच एज हंटिंग, फाइटिंग, पोजिंग विद वेपन्स. साथ ही साथ लेजरली एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हुए लाइक प्लेइंग अ वीणा, उसके बारे में भी एक साइड कभी कभी इंस्क्राइब कर देते थे. और यहाँ पे संस्कृत लेजेंड्स लिखे रहते थे. तो दैट वाज गुप्ता कॉइन, मोस्टली मेड ऑफ गोल्ड, ऑल्दो दे आल्सो इशूड सिल्वर एंड कॉपर. अच्छा, इसके ऊपर इंडोसीथियन या वेस्टर्न सैट्रैप्स की बात करें तो ये अब यहाँ पे संस्कृत है क्या? नहीं, यहाँ पे प्राकृत है. हैज़ बीन फाउंड रिटन इन मैनी स्क्रिप्ट्स. अच्छा, बुद्धिस्ट चैत्य या स्तूपा किस में देखने को मिलता है? तो इंडोसीथियंस में देखने को मिलता है. दैट इज़ नन अदर दैन वेस्टर्न सैट्रैप्स, बुद्धिस्ट चैत्याज ऑन वन साइड एंड हेड ऑफ द किंग ऑन द अदर साइड, राइट. तो ये साकाज और प्राकृत लेजेंड्स, प्राकृत भाषा में लेजेंड्स लिखे रहते थे. तो और सातवाहंस में उज्जैन सिंबल हो गया, और ये भी प्राकृत थे. तो सातवाहंस एज वेल एज ये कौन थे? सैट्रैप्स, वेस्टर्न सैट्रैप्स, इंडोसीथियंस, ये भी प्राकृत का इस्तेमाल करते थे. और सातवाहंस तो पोटिन, दैट इज़ एन अलॉय ऑफ सिल्वर एंड कॉपर, एंड मोस्टली लेड का इस्तेमाल करते थे सातवाहंस. जबकि कुशांस की बात करें तो ये निकल का इस्तेमाल करते थे, सिल्वर, कॉपर, निकल एंड एक और था, सिल्वर, कॉपर, निकल एंड लेड, ठीक है. और दूसरी चीज़ इंडो ग्रीक बेसिकली पाली का इस्तेमाल करते थे. इंडो ग्रीक तो खरुष्टी स्क्रिप्ट, दैट इज़ पाली लैंग्वेज, खरुष्टी स्क्रिप्ट एंड ग्रीक ऑन द अदर साइड, ठीक है. और ग्रीक डेटीज़ का इनिशियल कॉइन्स में
ग्रीक डेटीज़ थे और लेटर में इंडियन डेटीज़ को भी इंस्क्राइब किए थे सिक्कों पे, राइट। तो ये हो गया। और मौर्यन पीरियड में हमने देखा था ये करशपनाज बोलते थे, 4 प्रकार के थे, जिसमें सीसर रूप को लेड कॉइन समझा जाता था, ताम्र रूप को कॉपर, सुवर्ण रूप गोल्ड एंड रुपया रूप सिल्वर। ये 4 प्रकार के कॉइन हमको करशपनाज कलेक्टिवली बोलते थे। वी गेट टू नो अबाउट दिस फ्रॉम द अर्थशास्त्र। एंड जबकि मगध के बारे में क्या है कि मगध had generally 5 symbols. Magadhan coins had 5 symbols and they became the most circulated coins in the South Asia. और एक चीज़ ये है, the coins were made of silver in the Mahajanpat period and collectively they were sometimes called as Puranas and Karshapanas और Pana Karshapana। देखो करशपना में भी लास्ट में पनाज आ रहा है, तो यहाँ पे आप समझ सकते हो करशपना एंड पना, दे वर ऑल कॉइन्स ऑफ द महाजनपद पीरियड, राइट। और रत्ती इक्वल टू 0.11 ग्राम, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा 2 क्वेश्चन और बचे थे, देख लेते हैं। ये जैसे सवाल हमने गलत किया था ना, हाँ। फिर ये है, अब देखो वेस्टर्न चालुक्यन किंग्स यूज्ड इमेज ऑफ अ बोर एज अ कॉमन सिंबल इन कॉइन्स। अब देखो ये वेस्टर्न नहीं है, ये ईस्टर्न था, दैट वाज द प्रॉब्लम हियर। और पीकॉक का इस्तेमाल तो हर्षवर्धन करते थे, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इसमें डी आंसर जाएगा 3 का। और 4th का इलाही कॉइन्स वर इशूड बाय अकबर, तो ये तो आसान है। अब ये क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस थे, ठीक है। अब प्रीवियस ईयर देख लेते हैं, केवल मेंस में आया है। हाउ डू यू जस्टिफाई द व्यू दैट द लेवल ऑफ एक्सेलेंस ऑफ द गुप्ता न्यूमिस्मेटिक आर्ट इज़ नॉट एट ऑल नोटिसेबल इन लेटर टाइम्स। हाँ तो लेटर टाइम्स में ठीक है। तो ये चैप्टर ख़त्म।